There are lakhs of different organisms, plants, animals, fungi, bacteria. How do scientists organize this enormous diversity? Why is a mango tree different from a mushroom? Why are humans not placed in the same group as bacteria? Today, we will study the scientific system that brings order to life on Earth, which is biological classification. Now, what is a classification? Classification is the scientific arrangement of organisms into different groups based on their similarities and differences. So, to classify organism based on their similarities and differences is known as classification. And the branch of biology that deals with classification is known as taxonomy, and a single group is known as taxon. The single group in which the organisms are placed is known as taxon. The father of taxonomy is Carolus Linnaeus. Rather, the father of modern taxonomy is Carolus Linnaeus. He gave the system of binomial nomenclature. Now, what is binomial nomenclature? Bi means two and nomial means name, and nomenclature is the method of naming. So, it states that each organism has two names, which are genus and species. जीनस एक ब्रॉड ग्रुप है जिसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज आएंगी. जैसे ह्यूमन का जो जीनस है वो है होमो, और जो उसकी ह्यूमन की स्पीशीज है वो है सेपियंस. वैसे ही एक जीनस है पैंथेरा. पैंथेरा एक ब्रॉड ग्रुप है किसका? बिग कैट्स का. जो भी सारे बिग कैट्स हैं उनका जीनस है पैंथेरा, और उनमें अलग अलग स्पीशीज होगी जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड. सो ये सारी अलग अलग स्पीशीज हैं, जैसे कि लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया. बट इनका जो जीनस है वो क्या है? कॉमन, जिसका नाम है पैंथेरा. स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे ह्यूमंस हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे यानी जो बच्चे होंगे वो भी क्या होंगे? फर्टाइल होंगे, यानी आगे जाके वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसे जो डोंकी है प्लस डोंकी और हॉर्स, इनके रिप्रोडक्शन से म्यूल बनता है. बट जो म्यूल है वो आगे जाके खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, आगे जाके वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता. इसलिए जो डोंकी और हॉर्स है उनको हम एक स्पीशीज़ के अंदर नहीं रखेंगे. एक स्पीशीज़ के अंदर सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और आगे जाके ऐसे बच्चे पैदा करें जो आगे जाके खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन? बिकॉज it makes study easy. It helps us to understand the evolutionary relationships. Which means how organisms has evolved. It helps to identify new organisms. It also avoids
Confusion in naming. Imagine if every country had a different name for mango. What would happen? Science would collapse. Now let us study the early systems of classification. First, the two classification system was given. It divided organisms into two groups, which is Plantae and another is Animalia. All the plants were included in Plantae and all the animals were included in Animalia. But the problem with this system was, where do we place bacteria? Where to place fungi? And what about those organisms which possesses the mixed characters, which also have characters of plants as well as animals? So the scientists improved the system, and the most relevant and important classification was given by Robert Whittaker, R.H. Whittaker, in 1969. It is known as Five Kingdom classification. It classified organisms into 5 groups. One is Monera, another is called Protista, fungi, Plantae, and Animalia. He classified these organisms based on some features, which are: 1. Cell type, which means the organism is prokaryotic or eukaryotic. Second is the presence of cell wall, whether the cell wall is present or absent. Third is body organization, which means the organism is unicellular or multicellular, or have tissue, organ or organ system level of body organization. Fourth is the mode of nutrition. How these organisms obtain nutrition? They are autotrophic or heterotrophic, which means they can produce their food by themselves or they depend on other organisms for their food. And fifth is motility, whether these organisms can move or not. Now let us study all these kingdoms one by one. Now first let us study Monera. All the prokaryotic organisms are included in kingdom Monera. हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जिनका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक. तो जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंक्लूडेड हैं मोनेरा के अंदर, और बाकी सारे जो किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक. Now the another is level of body organization, whether these organisms are unicellular or multicellular or have tissue, organ or organ system of body organization. Monera are unicellular.
All the organisms that are included in kingdom Monera are prokaryotic and unicellular. Protista are the eukaryotic unicellular organisms. In fungi, they can either be unicellular or multicellular. In kingdom Plantae, they have tissue और organ level of body organization. ये हमने पढ़ा है कि जो सेल्स के ग्रुप हैं उससे मिलके बनता है टिश्यू, और जो बहुत सारे टिश्यू हैं वो साथ में मिलके बनाएंगे एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन वो साथ में एक्ट करेंगे और एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम. एनिमिलिया के अंदर होगा टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है? मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो या तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनेगी या म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की. ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं. प्रोटिस्टा के अंदर कुछ होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी. फंजाई के अंदर हमेशा सेल वॉल प्रेजेंट होगी और वो किसकी बनेगी? काइटिन की या फिर सेलुलोज की. काइटिन और सेलुलोज दोनों ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं. प्लांटी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल होगी हमेशा एब्सेंट. नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये अपना खाना कैसे लेते हैं? खुद बनाते हैं या दूसरे पे डिपेंड होते हैं? लेट्स सी. मोनेरा के अंदर आएंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों, यानी वो खुद भी खाना बना, कुछ ऐसे होंगे जो खुद खाना बनाएंगे और कुछ ऐसे होते हैं जो अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे. ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं, यानी सनलाइट की एनर्जी यूज़ करके वो अपना खाना बनाएंगे, या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं. कीमो का मतलब होता है केमिकल, यानी केमिकल एनर्जी यूज़ करेंगे और अपना खाना बनाएंगे. अब दूसरा हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉपिक यानी दूसरों से अपना फूड ऑब्टेन करना. अब ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे पैरासाइट होगा. पैरासाइट क्या होते हैं? जो अदर ऑर्गेनिज्म पे रह के न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, जैसे टिक हो गया, लाइस. ये क्या करते हैं? हेयर में रहते हैं और वहाँ से अपने न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब करते हैं. एक और होते हैं सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं. नाउ प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा क्या होंगे? या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे या फिर हेटेरोट्रॉपिक होंगे. और ऑटोट्रॉपिक में कौन से होते हैं? फोटोऑटोट्रॉपिक होते हैं. नाउ फंजाई. फंजाई हमेशा हेटेरोट्रॉपिक होंगे, बट ये या तो पैरासिटिक होंगे यानी दूसरे की बॉडी पे रहेंगे और उससे फूड एब्जॉर्ब करेंगे, या फिर होंगे सेप्रोफाइटिक. सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड एब्जॉर्ब करेंगे. प्लांटी हमेशा होंगे ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, और ये हमेशा क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी सनलाइट की एनर्जी यूज़ करेंगे और अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे. और इसके लिए इनके पास एक स्पेशल ऑर्गेनली होती है, उसे क्या कहते हैं? रिकॉल करो. ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है. नाउ एनिमिलिया. एनिमिलिया आर हेटेरोट्रॉपिक, यानी दूसरों से अपना खाना लेंगे, बट ये क्या होते हैं? होलोजोइक. होलोजोइक का मतलब क्या है कि ये लिक्विड या फिर जो सॉलिड फूड है उसको इंजेस्ट करेंगे, बट जो डाइजेशन है वो उनकी बॉडी के अंदर होगा, यानी डाइजेशन इंटरनल होगा. वेयर एज जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं? सीधा एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन. उन्हें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. वो डाइजेस्ट किया हुआ न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सीधा एब्जॉर्ब करेंगे. और एनिमिलिया ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो उनकी बॉडी के अंदर होगा. नाउ मोटेलिटी. जो मोनेरा हैं वो या तो मोटाइल भी हो सकते हैं या नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, यानी वो मूव कर भी सकते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो मूव नहीं कर सकते. सेम फॉर प्रोटिस्टा, दे कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. जो फंजाई है वो हमेशा क्या होंगी? नॉन मोटाइल. जो प्लांटी है, प्लांटी के अंदर कौन से आते हैं? मोस्टली
नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म आते हैं। और एनिमिलिया के जो अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मोस्टली मोटाइल होंगे, यानी मूवमेंट कर सकते हैं। अब इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यानी एग्जाम्पल्स, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं, इस पर काफ़ी बार यूपीएससी में क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यानी प्रोकैरियोटिक वाले सारे किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, मोनेरा के अंदर। तो इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से याद करने हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नोस्टॉक, एनाबीना, माइकोप्लाज्मा, ये सारे जो बैक्टीरिया होंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे मोनेरा के अंदर। दूसरे हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आएंगे, अमीबा, प्लाज्मोडियम, फंजाई के अंदर आएंगी यीस्ट, मशरूम, मोल्ड, प्लांटी के अंदर आएंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनिमिलिया के अंदर आएंगे ह्यूमंस, रेप्टाइल्स, ये सारे कौन किसके पार्ट हैं, एनिमिलिया के। एक बार वापस सारे क्लासिफिकेशन को देख लेंगे। जो रॉबर्ट विटेकर है उसने डिवाइड किया ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर। वन इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा के अंदर तो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे और सारे जो बैक्टीरिया हैं वो मोनेरा के अंदर ही आएंगे। प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। फंजाई के अंदर आएंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बट वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। प्लांटी के अंदर आएंगे वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा और ऑटोट्रॉपिक होंगे। एनिमिलिया के अंदर वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो हिटेरोट्रॉपिक होंगे, बट उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक होगा, यानी वो इंजेस्ट करेंगे चीज़ों को और फिर डाइजेशन उनकी बॉडी के अंदर होगा। वेरस जो फंजाई के अंदर हिटेरोट्रॉपिक होता है उसमें क्या होगा कि वो सीधा एब्जॉर्ब करेंगे, उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से जो डाइजेस्टेड फूड होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको लेंगे, उन्हें सिर्फ एब्जॉर्ब करना पड़ता है। नाउ ऑर्गेनिजम्स के नेम ये अच्छे से याद करने हैं। कौन कौन से आएंगे मोनेरा के अंदर, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, माइकोप्लाज्मा, नोस्टॉक, एनाबीना एक्सेट्रा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन से आएंगे, क्राइसोफाइट, डिनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ट्राइफेनोसोमा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। फंजाई के अंदर यीस्ट, मशरूम, मोल्ड। प्लांटी के अंदर एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और एनिमिलिया के अंदर रेप्टाइल, एविस, मैमेलिया, ह्यूमंस, स्पॉन्ज, इनवर्टिब्रेट, ये सब आ जाएंगे। नाउ लेट अस मूव टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया, जो मोनेरा किंगडम है ना उसे फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। सो फर्स्ट किंगडम वाज आर्कीबैक्टीरिया। आर्की मतलब प्रिमिटिव, इसके अंदर प्रिमिटिव बैक्टीरिया आएंगे या फिर अर्ली टाइम्स के अंदर जो बैक्टीरिया थे वो, ये एक्सट्रीम और हार्श कंडीशन के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा माइनस के अंदर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट को सहन कर सकते हैं, ड्राउट, ये जो सारी जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसके अंदर रह सकते हैं। दूसरा किंगडम है यू बैक्टीरिया। दीज आर ट्रू बैक्टीरिया जो बाद में डेवलप हुए। थर्ड किंगडम वॉज प्रोटिस्टा। फोर्थ इज फंजाई। फिफ्थ
is Plantae and sixth is Animalia। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में बस एक ही डिफरेंस है कि जो मोनेरा किंगडम है उसको हटा के दो किंगडम डाल दिए, आर्कीबैक्टीरिया का और यू बैक्टीरिया का। वैसे भी ये जो बैक्टीरिया वाला जो था वो किसके अंदर आता था, मोनेरा किंगडम के अंदर। बस इन्हें 2 पार्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर और एक यू बैक्टीरिया के अंदर। और बाकी सारे जो किंगडम है वो तो सेम ही है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। नाउ द 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम के अंदर क्या कहा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो या तो प्रोकैरियोट हो सकते हैं या यूकैरियोट हो सकते हैं। अब प्रोकैरियोट को भी इसने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक तो आर्कीबैक्टीरिया, एक यूबैक्टीरिया, एंड द लास्ट इज यूकैरियोटिक। इसने ऑर्गेनिज्म को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो आर्कीबैक्टीरिया, ये कौन से होंगे, प्रोकैरियोटिक ही होंगे जो अर्लियर प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे। दूसरे यूबैक्टीरिया, ये भी कौन से होते हैं, प्रोकैरियोटिक, जो थोड़े एडवांस बैक्टीरिया थे, इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। सो इसने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, एक तो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर, एक यूबैक्टीरिया के अंदर, और ये किसके पार्ट हैं, ये दोनों प्रोकैरियोटिक के ही पार्ट हैं, और तीसरा यूकैरियोटिक के अंदर। सो लेट अस एंड दिस क्लास, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास वी विल स्टडी द फाइलम ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स in brief, and then we will solve PYQ questions on classification. Thanks for watching.